Hello students, welcome to Gnan Manjari Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture, we have discussed about latitudes and longitudes, and we have also discussed about the time differences that seen in the different places of the earth. I hope you understood very well about this topic, and today's our main topic is circle of illumination. Then we will discuss about the revolution and rotation. So let's get start the topic. Okay, so first of all we will see one animated video. I hope this video will very useful for your easy preparation, and it is related to the topic like circle of the illumination. So I'll start animated video. Day and night. When the sunlight falls on Earth, only one part of Earth receives this light and experiences day. The other part does not receive the light and experiences night. The circle that divides the Earth into two halves of day and night is called the circle of illumination. If we observe the place marked with the red dot on Earth, we can see that as the Earth rotates from west to east, the place with the red dot also moves. It experiences day till the time that part of Earth faces the sun, and as it crosses the circle of illumination, it experiences night. As the Earth keeps rotating, the same place with the red dot marked on it again faces the sun and experiences day. This is how the cycle of day and night is caused due to the rotation of Earth. So I hope you understood very well about this all the topics. Like in this video we have discussed about the circle of illumination. Then we have also discussed about the concept of daytime and night time. हमने देखा कि डे टाइम कैसे ऑब्जर्व होता है और नाइट टाइम कैसे ऑब्जर्व होता है, और डे टाइम और नाइट टाइम दोनों के बीच में एक लाइन बनती है, इसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. So in this picture we can see one line between daytime and night time. It is known as circle of illumination. So ये जो लाइन है इसको हम कहेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पार्ट, यहाँ पर सनरेज फॉल हो रहे हैं, सो इसको हम कहेंगे डे टाइम. देन ये पार्ट काफ़ी डार्क है, यहाँ पर सनरेज फॉल नहीं हो रहे, इसीलिए यहाँ पर नाइट टाइम चल रहा होगा. सो दिस इज अबाउट द सर्कल ऑफ illumination. Then let's see about the revolution of the earth. So first of all we will compare two terms, rotation and revolution. So just like earth moves around its own axis, it also goes around the sun. This movement of the earth around the sun is called revolution. So first of all ये दो टर्म आपको याद रखने हैं. What is the meaning of rotation? When one object moves around its own axis, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस के आसपास मूव होता है. इन दिस पिक्चर वी कैन सी द अर्थ रोटेट्स. यहाँ पर हम देख सकते हैं अर्थ रोटेट कर रही है और अपनी एक्सिस, ये जो एक्सिस है उसके आसपास रोटेट हो रही है, तो उसको हम कहेंगे रोटेशन. एंड just like earth moves around its own axis, it also goes around the sun. What is the meaning of revolution? When one object goes around to another object, it is known as revolution. In this picture we can see this is sun, means one celestial body, and this is earth, this is another example of celestial body. So in this picture we can see one celestial body
goes around to the other celestial body. एक celestial body दूसरी celestial body के आसपास चक्कर लगा रही है, इसको हम कहेंगे revolution. So, the movement of the earth around the sun is called revolution. जैसे हमारी अर्थ सन के आसपास चक्कर लगा रही है, इसको हम कहेंगे revolution. So I hope you understood very well about the rotation and revolution topic. So let's see about the definition of rotate. So rotate means to turn around itself. कोई भी थिंग अपने आसपास ही घूम रही है, मीन्स अपने आसपास ही चक्कर लगा रही है, तो उसको हम कहेंगे रोटेट. एंड हियर वी हैव थ्री एग्जांपल ऑफ द रोटेट. फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्थ रोटेट टू टर्न अराउंड इटसेल्फ. अर्थ भी क्या कर रही है, एक एक्सिस से उसके आसपास घूम रही है, स्पिन हो रही है. देन इन दिस एग्जांपल वी कैन सी फैन ऑल्सो टर्न अराउंड इटसेल्फ. फैन के जो ये पंख है, ये भी अपने आसपास स्पिन हो रही है. देन यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, ये एक्सिस है मिडल वाला पार्ट, उसके आसपास ये टॉय रोटेट हो रहा है. सो रोटेशन आप याद रखिए, कोई भी थिंग अपनी एक्सिस के आसपास स्पिन हो रही है तो हम उसको कहेंगे रोटेट. सो ऑल द थिंग्स इन द पिक्चर्स आर रोटेटिंग. ये पिक्चर में हम देखते हैं सभी थिंग्स रोटेटिंग कर रही है. और किसके आसपास रोटेटिंग कर रही है, अपनी एक्सिस के आसपास रोटेटिंग हो रही है. सो फर्स्ट पिक्चर की बात करें, this is axis. In this picture we can see this is axis, and in the toys we can see this is axis. एक्सिस क्या होगा, एक पॉइंट होगा, एक लाइन होगी जिसके आसपास कोई भी थिंग है वो रोटेट होगी. मीन्स यहाँ पर हम देख सकते हैं अर्थ में एक लाइन है, इसके आसपास हमारी अर्थ है वो स्पिन हो रही. यहाँ पर फैन में भी हम देख सकते हैं कि एक लाइन है, ये लाइन के आसपास ही सभी फैन के जो पार्ट है वो रोटेट हो रहे हैं. यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये एक लाइन है, उसके आसपास ही पूरा टॉय है वो रोटेट हो रहा है. देन लेट्स सी अबाउट रिवॉल्व. रिवॉल्व का मीनिंग क्या है. सो रिवॉल्व मीन्स टू गो अराउंड समथिंग एल्स. रिवॉल्व का सिंपल सा मीनिंग ये है कि कोई भी थिंग उसके आसपास हम अराउंड हो रहे हैं, हम उसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे रिवॉल्व. सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी दिस इज वन ऑब्जेक्ट एंड दिस मैन और बॉय रिवॉल्व अराउंड इट. इसके आसपास रिवॉल्व हो रहा है, उसके आसपास चक्कर लगा रहा है. सो दिस इज द रिवॉल्व, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अ बॉय रिवॉल्विंग अराउंड one object. Then let's see about the rotation of the earth. So the period of one rotation of earth around its own axis makes a one day. अर्थ जो अपनी एक्सिस के आसपास रोटेट होता है और एक रोटेशन कंप्लीट होने में वन डे का टाइम लगता है. सो द पीरियड ऑफ वन रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस मेक्स अ वन डे. सो अर्थ में एक रोटेशन कंप्लीट होने का टाइम है वन डे. ये पॉइंट आपको याद रखना है. देन लेट्स सी अबाउट द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ. सो द पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन मेक्स वन ईयर. सो अर्थ सन के आसपास जो रिवॉल्यूशन एक कंप्लीट करता है उसका पीरियड है वन ईयर. अर्थ को सन के आसपास एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए वन ईयर की ज़रूरत होती है. सो आपको ये दो पॉइंट याद रखने हैं. वंस अगेन आई रिपीट, द पीरियड ऑफ वन रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस मेक्स वन डे, and the period of one revolution of earth around the sun makes one year. So generally the earth takes
365 days and 6 hours to go around the sun once. But a year only has 365 days. What happens to the remaining 6 hours? जनरली हमारी अर्थ है वो सन के आसपास एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 365 डेज और एक्स्ट्रा 6 आवर का टाइम लेती है। बट हमारे कैलेंडर की बात करें तो 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। यहाँ पर 6 आवर का एडिशन हमें देखने को नहीं मिलता। सो व्हाट हैपन्स टू द रिमेनिंग 6 आवर? जो 6 आवर बची है उसका क्या होगा? So, the 6 hours saved every year are added to make one day, means 24 hours over a span of 4 years. मीन्स हमने देखा कि एक ईयर कंप्लीट होने में 365 डेज एंड 6 आवर का टाइम लगता है। हमने देखा कि हमारी अर्थ सन के आसपास एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 365 डेज एंड 6 आवर का टाइम लगाता है। बट अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। सो जो 6 आवर रिमेनिंग थी हर साल every year 6 hours saved and are added to make one day over a span of 4 years। एक ईयर में 6 आवर सेव होती है। सो 4 ईयर में 4 into 6 मीन्स 24 आवर सेव होगी और ये एक 1 डे के रूप में ऐड होगा इन द कैलेंडर। So, this surplus day is added to the month of February. Thus, every fourth year, February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 360 days is called a leap year. तो हमने देखा कि 4 साल में 4 ईयर के बाद एक डे ऐड होगा इन द कैलेंडर। सो दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रुआरी। ये डे को हम कहाँ पर ऐड करेंगे? इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी। thus every fourth year February is of 29th day इंस्टेड ऑफ 28 डेज। हम सब जानते हैं फेब्रुआरी में जनरली डेज होते हैं 28 डेज। बट जब भी ये फोर्थ ईयर आएगा यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 28 डेज फेब्रुआरी इज ऑफ 29 डेज। यहाँ पर 28 डे के अलावा 29 डेज हो गए एंड सच अ ईयर विथ 360 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। और ये कैलेंडर में ये जो साल चल रहा होगा जहाँ पर हमें 360 डेज देखने को मिल रहे हैं, ये ईयर को हम लीप ईयर से भी जानते हैं। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस ऑल द पॉइंट्स। देन लेट्स सी अबाउट चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। आज हमने जो भी देखा उसकी एक चेकिंग कर लेते हैं। सो हाउ मच टाइम डज द अर्थ टेक टू कंप्लीट वन रोटेशन? As we discussed in the starting of the lecture, Earth takes 24 hours to complete one rotation. हमारी अर्थ 24 आवर का टाइम लगाती है फॉर द completion of one rotation. Then, how much time does the Earth take to complete one revolution? हमारी अर्थ एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगाती है? हाउ मच टाइम डज द अर्थ टेक टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन? सो आंसर इज द अर्थ टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए हमारी अर्थ 365 डेज एंड एक्स्ट्रा 6 आवर का टाइम लेती है। Then here we have one NCERT question. So question is, what is a leap year? Leap year क्या होता है? So a leap year is a year with 366 days. It happens because Earth takes 365 days and 6 hours to go around the sun in one revolution. Generally हमारी अर्थ सन के आसपास एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 365 डेज और एक्स्ट्रा 6 आवर का टाइम लेती है। देन 6 आवर्स
saved every year are added to make one day over a span of 4 years. 4 ईयर के टाइम के बाद ये 6 आवर सेव होगी और एक डे को बनाएगी, मीन्स 6 आवर सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक वन डे मीन्स 24 hours. Then this surplus day is added to the month of February. Thus every fourth year February is of 29th day instead of 28 days. And ये surplus day फेब्रुआरी मंथ में ऐड होता है और इसीलिए हर 4 साल में फेब्रुआरी मंथ में एक 29 डेज का मंथ होता है इंस्टेड ऑफ 28 डेज। जनरली 4 ईयर की कंपेयर करें तो एक साल 29 डेज का मंथ होगा एंड 3 साल मीन्स 3 साल 28 डेज का मंथ होगा फेब्रुआरी। सो दिस पॉइंट यू मस्ट रिमेंबर। Then here we have one MCQ. So the movement of the earth around the sun is known as, so option are rotation, revolution and inclination. So right answer is revolution, क्योंकि हमने देखा कि अर्थ हमारी सन के आसपास चक्कर लगा रहा है, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसको हम कहेंगे रिवॉल्यूशन। Then we have some fill in the blanks. So a leap year has blank number of days. Leap year में कितने days होते हैं? So leap year has 360 number of days. Then Earth travels around the sun in blank orbit. So as we discussed in the previous lecture, the Earth travels around the sun in elliptical orbit. So in this lecture we have discussed about three important points. First of all, we have discussed about circle of illumination, then we have discussed about revolution, and we have also discussed about rotation. So I hope you understood very well about these all the topics. Once again we will revise all the points from your supplementary book. So open your supplementary book and reach on SP number 13। SP नंबर 13 का पेज ओपन कीजिए, यहाँ पर ये टॉपिक दिया हुआ है। So first of all, concept time 9 is rotation of the earth. So the movement of the earth around its own axis is called rotation of the earth. रोटेशन का मतलब हमने देखा कि मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, एक्सिस के आसपास जो मूवमेंट होती है हमारी अर्थ की, इसको हम कहेंगे रोटेशन। Then here we have three boxes. So first box is about the time taken for one rotation around its axis. So around 24 hours. हमने देखा था कि एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए 24 आवर का टाइम लगता है। देन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, हमारी अर्थ जो रोटेट हो रही है उसकी डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट। देन इफेक्ट ऑफ रोटेशन, रोटेशन की सीधी इफेक्ट हमारे डे एंड नाइट टाइम में देखने को मिलती है। सो इफेक्ट ऑफ द रोटेशन इज ऑन द डे एंड नाइट टाइम ऑन द अर्थ। Then let's see some point from the circle of illumination. So as can be seen in the figure, one half of the earth receives sunlight from the sun at a time, and all those places receiving sunlight, for example town A here, experience day, and all the places not receiving sunlight, for example town B here, experience night. So in this picture we can see two different places. One place is A and one place is B. एंड हम देख सकते हैं कि ए प्लेस जो सनराइज को रिसीव कर रही है, और एक प्लेस जहां पर हमें सनराइज रिसीव होती देखने को नहीं मिलती। सो ए प्लेस एक्सपीरियंसिस डे टाइम, इसीलिए हमें ए प्लेसेस पे डे टाइम देखने को मिलेगा क्योंकि वहां पर सनरेज फॉल हो रही है। एंड प्लेस बी एक्सपीरियंसेस नाइट टाइम, क्योंकि यहाँ पर सनरेज फॉल नहीं हो रही है। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट।
So once again I repeat, for example, town A here experience day and all the places not receiving sunlight. For example, town B here experience night time. Then the circle dividing the earth into two parts of one with day and another with night is called the circle of illumination. एंड यहाँ पर हम देखते हैं एक सर्कुलर लाइन जो हमारी अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है. वन पार्ट इज नॉन एज डे टाइम, अनदर पार्ट इज नाइट, एंड इट इज कॉल्ड एज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. यहाँ पर हम देख रहे हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इन द पिक्चर. डे टाइम एंड नाइट टाइम दोनों के बीच में एक सर्कुलर लाइन है जिसको हम कहेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. देन द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट one rotation around its axis is about 24 hours, which makes one day. हमारी अर्थ जो हमारी एक्सिस के आसपास मूव होती है, अराउंड होती है, इसका टाइम है, वन रोटेशन का टाइम है 24 आवर्स. और हम सब जानते हैं वन डे इज इक्वल टू 24 आवर्स. Then we will move to SB number 14. So in the SB number 14 we can see the topic like revolution of the earth. So what is the meaning of revolution? So the movement of the earth around the sun in a elliptical orbit is called the revolution of the earth. हमारी अर्थ सन के आसपास जो अराउंड हो रही है, मूव हो रही है, उसको हम कहेंगे रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. एंड जो पाथ है इसको हम कहेंगे इलिप्टिकल ऑर्बिट. जो पाथ में हमारी अर्थ है वो सन के आसपास मूव हो रही है, इसको हम कहेंगे इलिप्टिकल ऑर्बिट. देन time taken for one revolution around the sun. The time is 365 days and extra 6 hours. Then direction of revolution. So the direction of the revolution is anti-clockwise. In this picture we can see the direction of the revolution. So direction is anti-clockwise. क्लॉक जनरली इसी तरीके से मूव होती है, बट यहाँ पर हम डायरेक्शन देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉक जिस तरीके से मूव होती है उससे उल्टी डायरेक्शन में हमारी अर्थ सन के आसपास रिवोल्यूट होती है. देन इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन अलोंग विथ एक्सियल टिल्ट. So effect of the revolution is on the change of season, and this topic we will discuss in our next video lecture. Then the extra 6 hours taken by the earth to complete its revolution around the sun is not included in the time period of 1 year and is carried over every year. सो हमने देखा कि हमारी अर्थ सन के आसपास जो रिवोल्यूट हो रही है उसका टाइम है 365 डेज एंड 6 आवर का. बट हमारे कैलेंडर की बात करें इसमें 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज. सो ये 6 आवर 4 ईयर में ऐड होके बन जाएगी 24 आवर्स. सो एवरी 4 ईयर्स these 6 hours from each year sum up to a total of 24 hours. ये 6 आवर हर साल मिलके 4 साल में एक 24 आवर का टाइम बनाएगी. एंड दिस मेक्स one day and is added as 29 February in the calendar. और ये 24 आवर्स का एक डे बनेगा और ये कैलेंडर में ऐड होगा as the 29th February. So such years which have this extra day in the month of February are called leap years. ऐसे ईयर जिसमें हमें ये एक्स्ट्रा डे देखने को मिलता है उसको हम कहेंगे लीप ईयर्स. एंड यू मस्ट रिमेंबर हर 4 साल में हमें एक लीप ईयर देखने को मिलेगा इन द कैलेंडर. Then last point is, as can be seen in the figure above, the earth goes around the sun in elliptical path. This is called its orbit.
The plane formed by this orbit is called elliptical plane. So हम देख सकते हैं इन द फिगर कि अर्थ ये जो पाथ है इसमें रिवोल्यूट होता है अराउंड द सन, इसको हम कहेंगे इलिप्टिकल पाथ। और ये जो एरिया बन रहा है इसको हम कहेंगे ऑर्बिटल प्लेन। सो यू मस्ट रिमेंबर टू important टर्मिनोलॉजी, elliptical path and orbital plane. Then in the last we will discuss about practice question 8.1. So question is, what would happen if the earth did not rotate? अगर अर्थ रोटेट ना होती तो क्या होता? So if the earth did not rotate, the portion of the earth facing the sun would always experience day, thus bringing continuous warmth to the region. Then the other half would remain in darkness and be freezing cold all the time. Life would not have been possible in such extreme condition. सो आपको याद रखना है कि अगर हमारी अर्थ रोटेट ना होती तो क्या होता। एक पार्ट जो कंटिन्यूअसली डे टाइम एक्सपीरियंस करता रहेगा, क्योंकि हमने देखा कि एक पार्ट सन के सामने होगा और एक पार्ट सन के ऑपोजिट होगा। जो पार्ट सन के सामने यहाँ पर डे टाइम चल रहा होगा और जो टाइम सन के जो पार्ट सन के ऑपोजिट है यहाँ पर नाइट टाइम चल रहा होता है। सो अगर हमारी अर्थ रोटेट होती तो हमारी अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस में हमें कभी कभी डे देखने को मिलता है, कभी नाइट टाइम देखने को मिलता है। बट अगर हमारी अर्थ रोटेट नहीं होगी तो क्या होगा, जो भी प्लेस एक जगह पर है वो यहाँ पर ही रहेगी। सो one portion always experience day, then other half would remain in darkness and be freezing cold all the time. एक पार्ट जहाँ पर हमेशा डे टाइम चल रहा होगा और इसीलिए ये काफ़ी वार्म होगा, काफ़ी हॉट रीजन बन जाएगा। एंड एक पार्ट जहाँ पर ऑलवेज नाइट टाइम चल रहा होगा, सो इसीलिए क्या होगा, ये पार्ट पर हमें काफ़ी डार्कनेस देखने को मिलेगी और यहाँ पर हमें काफ़ी लो टेम्परेचर मीन्स कोल्डनेस देखने को मिलेगी। So the result of this point is life would not have been possible in such extreme condition. ऐसी कंडीशन पे ह्यूमन लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी, क्योंकि एक प्लेस पे ज़्यादा गर्मी होगी, एक प्लेस पे ज़्यादा ठंडी होगी, कोई एवरेज टेम्परेचर हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए life would not have been possible in such extreme conditions. So in this lecture we have discussed about circle of illumination, then we have also discussed about the rotation, we have also discussed about the revolution. I hope you understood very well about this all the points, and if you have any doubt regarding this topic you can ask me anytime. So now this is end of the lecture. In the next lecture we will move further from the chapter. तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.